let us start our class. Okay. So we have already seen a differential amplifier using one op amp. Then we got with the one op amp, yes, it amplifies the difference of two signals Vx minus Vy with a gain of Rf and R1. But the drawback was that the input impedance with feedback from both the inputs are different. From the Y input, we get R2 plus R3. From the X input, Vx input, we get R1. So there is a mismatch of input impedance. So then we have seen a differential amplifier using two op amp. And when we have seen differential amplifier using two op amp, we try to give the input to both the non-inverting terminal of A2 as well as non-inverting terminal of A1. So we thought ki maybe the input impedance will be similar. Although we are getting the output voltage as a difference of two signals, that too in a non-inverting mode, means with the gain of 1 plus Rf upon R1, but still the input impedance is not similar. When we take Rify as Ri times 1 plus AB, so B here is R2 upon R2 plus R3, which is equal to Rf upon Rf plus R1. Whereas looking from the Vx input, we are getting R1 upon R1 plus Rf. So still the Rifx and Rify are not same. So then we have seen the differential amplifier using 3 op amp. With the 3 op amp, it is very symmetrical, and that's why we could get a output voltage VO which is proportional to, we can say, minus Rf upon R1 plus 2 R4 upon R5. Usually this R4 is used as a gain adjustment register. Here what do we observe? That looking from both the sources, both the input impedances are similar, and that's why it is mostly preferred. Okay, so now in every application, as a specific example, we have seen that if I make its feedback resistance 0, we get a voltage follower at the input side of both the input, and the simplification simply gives the gain as minus Rf upon R1. Now we'll see the application of this one for, we can say, one of the transducer. Okay, so let us see here, which we can say instrumentation amplifier. Here we'll use the transducer bridge. Now, have you studied Wheatstone bridge? आपको कहीं हुआ है क्या Wheatstone ब्रिज पढ़ा है क्या आपने? यस सर, पढ़ा है ना? अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चार अपने ब्रिज में आपने देखा होगा कि 4 आर्म रहते हैं, बराबर है ना कि नहीं? यस सर। बस वही चीज हमको यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ पे एज यूजुअल हम बोल रहे थे कि इसको हम यूनिटी गेन एम्पलीफायर करके यूज कर लेते हैं। तो यूनिटी गेन एम्पलीफायर के लिए अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लगा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे समझो कि ये प्लस है और ये जो है ये निगेटिव है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको भी सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एज अ यूनिटी गेन एम्पलीफायर यूज किया है, और दोनों के इनपुट्स को एक ब्रिज दे दिया है। किसका? रेजिस्टिव ब्रिज है। समझ लो कि ये 4 का आर्म है और उसमें एक रजिस्टर एंड ट्रांसड्यूसर यूज किया। ट्रांसड्यूसर यानी समझता है आपको ट्रांसड्यूसर वर्ड आया होगा मेजरमेंट में। क्या होता है ट्रांसड्यूसर के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से ये रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दिस इज एक्साइटेड बाय सर्टेन वोल्टेज, लेट्स से सम डीसी वोल्टेज दिया है इसको कनेक्टेड है which is grounded, let's say some VDC, और मान के चल लो कि ये रेजिस्टेंस कोई RA है, ये RB है और ये RC है, और ये जो ये पॉइंट है ये कनेक्टेड है इस पे। इसको नाम दे देता हूँ मैं, लेट्स से वोल्टेज एट VA, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इसको कनेक्टेड है। अब हमको मालूम है कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर में यूज करते तो कैसे करते हम लोग, यहाँ से यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे, इसको इधर कनेक्ट कर देंगे। सेम वे में ये जो डिफरेंशियल आया है यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट कर देंगे, और इस पे भी एक रजिस्टर हम लोग ग्राउंड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया, और ये एक रजिस्टर लगा दिया। जनरली ये दो रजिस्टर हम सेम रखते हैं। तो अगर ये RF है तो इसको भी हम लोग, अगर इसको मैंने R1 मान लिया तो ये दोनों रजिस्टर हम सेम लेते हैं कि अगर सपोज R2 है तो ये R1।
और ये R3 है, तो ये इक्वल टू फीडबैक रजिस्टर रहता है। तब इसका डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल्स वी गेट एट द आउटपुट, ठीक है ना। मान के चल लो यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है जो कुछ मीटर को दिया हुआ है, ऐसे मान के चलो कोई मीटर या कोई कोई तो भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई पॉइंटर है, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से ये मीटर को दिया हुआ है, इसको इंडिकेटिंग मीटर बोल सकते हैं। कुछ तो भी है, कोई वोल्ट मीटर, एम मीटर, कोई भी यानी मीटर है वो, ठीक है। इसमें क्या नहीं समझने आने वाला चीज है, देखो तो ये वाला आप लोग पहले देख चुके हैं इसी में स्पेशल केस करके। ये जो है ये दोनों वोल्टेज फॉलोअर है, मतलब यहाँ V1 दिया तो यहाँ V1 मिलेगा, यहाँ V2 दिया तो यहाँ V2 मिलेगा, क्योंकि ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर है। और यहाँ -RF/R1 और ये दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे हमको गेन मिलता है। यही चीज का हम लोग यूज करेंगे। अगर इसका मतलब यहाँ VA है तो यहाँ VA मिलेगा, इसको मैंने VB पॉइंट नाम दे दिया तो यहाँ पे VB आएगा, और ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर होने से यहाँ पे भी VB मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंस, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है VAB डिफरेंशियल, वही सेम यहाँ भी आ रहा है। अब ये तो हमको मालूम ही है क्या है ये VO, यहाँ इसका VO हमको मालूम है -RF/R1, यहाँ पे VAB आएगा। बस अब हमको VAB पता करना है, यानी हो जाएगा। अब देखो ये चारों रजिस्टर जो है ना, RA, RB, RC और इसको नाम दे दिया RT, यानी कि ट्रांसड्यूसर रजिस्टर। अब ट्रांसड्यूसर रजिस्टर क्या होता है बताइए तो, कि जिसका यानी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर इज एनी we can say thing which converts a physical energy into electrical energy। इसका मतलब वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई और फोर्स हो सकता है, एनीथिंग। आप वेइंग मशीन देखे ना, वेइंग मशीन मार्केट में जाते हैं तो आप डिजिटल में आप गिनते हैं ना, 1 kg हुआ, 2 kg हुआ, देखते कि नहीं। इनसाइड दैट ट्रांसड्यूसर ब्रिज इज देयर एंड ए लोड सेल मे बी देयर, which what when you apply a certain pressure by means of putting the weight, its resistance changes. We need to calibrate that resistance in accordance with weight or in linearity with weight. The very same thing we are trying to do. Actually, in the balanced case, in the balanced state, both the voltage VB and VA will maintain 0. So we'll choose the resistance RA, RB, RC equal with you can say transducer, so that when no weight is applied or no pressure is applied or no temperature, it can be temperature, pressure, humidity, kuch bhi, no nothing is applied, it will remain as RT, which will be equal to RA, RB, RC equal, all equal, so that equal voltage will be there at VA and equal voltage will be there VB, so that zero voltage VAB will be 0, और जब VAB 0 होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी 0 होगा। तो ये बैलेंस केस है। अब इसमें कुछ चेंज आएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कोई फोर्स या प्रेशर या कुछ, तो उस चेंज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर। तो वो कुछ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। उस सेट से कम टेम्परेचर नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी। अपन ने रूम टेम्परेचर ले लिया सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कम हो गया तो माइनस जा रहा है, प्लस बढ़ गया तो प्लस जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो अभी हम इसके लिए रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले व्हाट इज दिस रेजिस्टिव ट्रांजिस्टर? दिस रेजिस्टिव ट्रांजिस्टर इज its resistance changes as a function of some physical energy that can be anything, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह। so how it will change? RT plus minus delta R. A small change will occur where RT is transducer resistance and delta R is change in resistance RT। मतलब सपोज नॉर्मल स्टेट में ये 100 ओम है, 101 होना या 99 होना या 95 होना, that will be the change delta R. Okay, so when the bridge is balanced क्या होगा? So when the bridge is balanced, all the resistors will be equal, so we can say VB is equal to VA. Can we say? ये ब्रिज को देखो जरा, ये दोनों वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे, VA इक्वल्स टू VB, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसके अपर एंड को ये एक तरीके से कैसा है, यहाँ पे एक रजिस्टर RC है जिसके सीरीज में एक RB है, इसको लगा हुआ वोल्टेज है VDC यहाँ पे, और यही सेम वोल्टेज RT को है और इसको है RA को, और यहाँ पे एक वोल्टेज VA है, एक यहाँ वोल्टेज VB है। अब ये जब इक्वल रजिस्टर है तो यहाँ जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ आएगा, इसलिए दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे या दोनों वोल्टेज इक्वल आएंगे। सो इन दी बैलेंस्ड केस VB इज इक्वल टू VA। नाउ व्हाट विल बी VB वोल्टेज? कोई बता सकता है VB वोल्टेज क्या होगा? देख के बताओ। VB वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा? वोल्टेज बताओ, ये अब समझ में आना चाहिए भैया, अब इतना तो मैं चाहूंगा। VB वोल्टेज किसके अक्रॉस वोल्टेज होगा? RA, RB की RC की RT? RB। VDC किसके अक्रॉस लगा है? देखो VDC किसके अक्रॉस लगा है? यहाँ से यहाँ तक है,
इसका मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मतलब आरसी और आरबी सीरीज में लगा हुआ है उसको अक्रॉस है, और आरटी और आरए इस सीरीज के अक्रॉस लगा हुआ है। वीबी किसके अक्रॉस होगा? ग्राउंड पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है ग्राउंड, ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड है, तो किसके अक्रॉस हो गया? वीबी आरबी आरबी के अक्रॉस। और वीए किसके अक्रॉस होगा? आरए। आरए। सो कैन वी कैलकुलेट द वोल्टेज? वीबी कैसे निकालेंगे? आरबी के अक्रॉस है, सीरीज डिवाइडर नेटवर्क देखो, दो रजिस्टर की कौन से सीरीज में है? ये देखो अपर वोल्टेज यहाँ पे वीडीसी वोल्टेज लगा हुआ है, ये आरसी है और ये आरबी है, और हमको वीबी का वोल्टेज निकालना है, वीबी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब बताओ वीबी के लिए क्या होगा? आरबी अपॉन आरबी प्लस आरबी यस यस इनटू वीडीसी इक्वल टू वीए किसके अक्रॉस वोल्टेज है? आरए 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 अपॉन आरए प्लस आरटी आरडी आरटी। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा आर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हम बैलेंस केस की बात कर रहे हैं, जब नथिंग, नो प्रेशर इज अप्लाइड, नो टेम्परेचर इज अप्लाइड और टेम्परेचर इज एट सेट पॉइंट, और ये भी हो जाएगा वीडीसी। तो इसमें से हमको क्या मिल रहा है? इसको सॉल्व करेंगे ना तो कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड लगा या कुछ और लगा, ये सिंपली आ जाएगा आरबी अपॉन आरसी इज इक्वल टू आरए अपॉन आरटी। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आरबी अपॉन आरसी आरए अपॉन आरटी। ठीक है, इस केस में अगर आप कंपोनेंट लगाते तो ये वाला आ जाता है, यही वाला फॉर्म। तो ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई भी करेंगे, क्रॉस वगैरह करेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा। इज इट ओके? नाउ हियर व्हाट वी आर ट्राइंग, ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू गेट, यस, वीए भी फाइंड आउट कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम वीओ फाइंड करेंगे एंड विल ट्राई टू शो दैट वीओ इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन आरटी डेल्टा आर, और डेल्टा आर में चेंज के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब उस फिजिकल एनर्जी पे वो प्रोपोर्शनल है, मतलब वो टेम्परेचर पे है तो टेम्परेचर, प्रेशर है तो प्रेशर, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, फिर उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, उसको स्केल में दिखा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। सो रजिस्टर आरए, आरबी एंड आरसी आर सिलेक्टेड equal in value to the transducer resistance RD at some reference condition, at some reference condition। ये रेफरेंस कंडीशन क्यों बोला है? कुछ समझ सकते हैं क्या? कुछ बता सकते हैं क्या? एट सम रेफरेंस टेम्परेचर कंडीशन। फॉर एग्जांपल सपोज आप एक टेम्परेचर मेजरमेंट का डिवाइस बनाना चाह रहे हैं, एक थर्मामीटर बना रहे हैं, तो एक रेफरेंस कंडीशन लगेगा ना कि फॉर एग्जांपल एक आइस में हमने वो सेंसर डाल दिया और हमको मालूम है कि हम आइस का टेम्परेचर कितना लेते, 0 डिग्री, तो उस समय हम लोग बैलेंस करेंगे सबका रजिस्टर, एक प्रिसीजन रजिस्टर से उसके अंदर पॉट या प्रीसेट लगा के उन सब का एडजस्ट इस तरह करेंगे कि VB इज इक्वल टू VA है। अब या तो टेम्परेचर उससे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर उसी बर्फ में आपने नमक डाल दिया तो दैट विल बी -4 तक के जा सकता है। आपने उसको गर्म किया तो वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो इस तरीके से रजिस्टर चेंज आएगा और उसको हमको कैलिब्रेट करना है वोल्टेज के फॉर्म में। सो दिस इज व्हाट दैट द RT एट सर्टेन रेफरेंस कंडीशन। अब ये जो है यू कैन से द रेफरेंस कंडीशन इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द फिजिकल, अभी जनरल बोल रहा है, फिजिकल इसलिए बोल रहा है कि वो टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। आप जो मेजर कर रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं, दैट मींस द ब्रिज इज बैलेंस्ड, so it is that reference condition। for example weighing machine में reference condition क्या होगी? जब आपने उस पैन में से सभी वेट उठा लिए, मतलब there is no weight, आया ध्यान में? when there is no weight, that is the reference condition, 0। okay, now as the physical quantity to be measured, मतलब हम चाहे तो अब वजन गिन रहे हैं या टेम्परेचर गिन रहे हैं, ये अगर चेंज होता है, मतलब उस पैन में आपने या तो वेट डाल दिया या नॉर्मल टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं? कौन सा रेजिस्टेंस चेंज होगा? आरए होगा कि आरबी होगा कि आरसी होगा कि आरटी होगा? कौन सा रेजिस्टेंस चेंज होगा? आरटी। हाँ, द रेजिस्टर, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स है ना, वो ट्रांजिस्टर है करके उसकी प्रॉपर्टी है कि विद द फिजिकल एनर्जी इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, और उसी को हम उसको प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज करेंगे और उसको मेजर करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर आल्सो चेंजेस which causes, अब इम्बैलेंस हो जाएगा ना, अब तो बैलेंस हट जाएगा ना, which causes the bridge, इसी में नोट्स हो जाते हैं आपके, bridge to unbalance। अनबैलेंस है क्या होगा? VA और VB जो सेम थे अब सेम नहीं रहेंगे। अब VA VB सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा? there will be certain VAB प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज। यहाँ VAB जनरेट होगा, जैसे ही VAB जनरेट होगा इसको हमने बहुत बड़े बफर से कनेक्ट करके यहाँ पे VAB ला लिया ताकि यहाँ लोडिंग प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ब्रिज का आउटपुट बहुत कम रहता है, सेंसर का आउटपुट बहुत कम रहता है, कई बार मिलीवोल्ट या माइक्रोवोल्ट में रहता है, तो यहाँ पे नॉइज इंट्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए बफर्ड
इनपुट हमने कनेक्ट किए, तो हमको यहाँ वी ए भी मिलेगा। और अब इस डिफरेंस ऑफ सिग्नल को हम लोग एम्पलीफाई करेंगे माइनस आर एफ अपॉन आर वन टाइम से, ठीक है। यही चीज हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी ए विल नॉट बी इक्वल, सो द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ब्रिज can be expressed as a function of the change in resistor of the transistor। और अगर हम आउटपुट वोल्टेज इन अकॉर्डेंस विथ चेंज इन रेजिस्टेंस कर लिए, इसका मतलब हम लोगों ने वो फिजिकल एनर्जी के बराबर कर लिए। सो लेट दैट चेंज बी डेल्टा आर, लेट द चेंज इन आर टी बी डेल्टा आर, ठीक है। दैट कैन बी प्लस चेंज, दैट कैन बी माइनस चेंज। अब देखो, सिंस आरबी एंड आरसी आर फिक्स मतलब कांस्टेंट, तो वीबी विल बी कांस्टेंट। क्यों वीबी कांस्टेंट होगा? क्योंकि वीबी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वैल्यू क्या है, वीबी की वैल्यू है आरबी अपॉन आरबी प्लस आरसी इंटू वीडीसी। सो एज दिस इज फिक्स रजिस्टर, तो ये वीबी चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा? ये आरटी के कारण। चेंज क्या होगा? ये आरटी के कारण चेंज होगा। आरए फिक्स है तो वीए चेंज होगा, वीबी फिक्स रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, बस यही यहाँ पे दावा किया है, यही क्लेम किया है। So however, ये there is as a function of the change in RT, change in RT। Therefore VA की वैल्यू क्या होगी? अभी VA था RA के अक्रॉस वोल्टेज, तो अभी RA की अक्रॉस है, लेकिन जब चेंज होने के बाद ये क्या रहेगा? RA प्लस जो RT था, अब उस RT की जगह यहाँ पे आ जाएगा साथ में डेल्टा। नाउ इट डिपेंड्स कि ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा इनटू VDC। ये समझ में आया क्या है? VA और वीबी की वैल्यू कितनी हो तो फिक्स है, कितनी है उसकी वैल्यू? आरबी अपॉन आरबी प्लस आरसी इंटू वीडीसी, ठीक है। ये Yes. इन दोनों का डिफरेंस रहेगा हमारा वीएबी, बराबर है। देयरफॉर वीएबी और वी कैन से वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट ऑफ ब्रिज, ये जो वीएबी है, तो ये कितना होगा? वीएबी यानी वीए माइनस वीबी। तो इसको तो हम लिख सकते हैं वीए माइनस वीबी को इस तरीके से, आर ए वी डी सी अपॉन आर ए प्लस आर टी प्लस डेल्टा आर माइनस आर बी अपॉन आर बी प्लस आर सी इंटू वी डी सी, ठीक है। यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। यस, तो हमने यहाँ पे लिया ही है, हियर आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर टी इक्वल टू, लेट से सभी रजिस्टर इक्वल को हमने आर मान लिया, तो हमारा वीएबी मिल जाएगा। सब रजिस्टर इक्वल होने से ये सब आर वीडीसी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे दिस आर प्लस दिस आर 2R हो जाएगा। तो 2R प्लस डेल्टा आर माइनस 1 अपॉन 2R। इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि आर ए प्लस आर बी ये सब मिलकर 2R होते जाएगा, ठीक है। सो वी गेट अ रिलेशन एज, सपोज इफ आई टेक द एलसीएम ऑफ दिस वन, so 2R plus delta R into let's say 2R, तो this 2R minus ये तो माइनस डेल्टा R आ जाएगा। ये R और ये R हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको VAB मिल जाएगा, माइनस आया है बाहर, डेल्टा R, ठीक है। VDC लिखा हुआ ही है अपॉन 2, ये इसका 2 और ये यहाँ पे है R प्लस डेल्टा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स, ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, दैट VA is less than VB as RT increases। RT प्लस डेल्टा R होता है तो VA छोटा होते जाता है। सो अपना VA भी मिल चुका है। अब VO कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज VO, हमारे पास फार्मूला मालूम था हमको, क्या? माइनस RF अपॉन R1 VAB। वी नो दैट ऑलरेडी, ये हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, तो माइनस RF अपॉन R1, और VAB की वैल्यू यहाँ अपन ने निकाल चुके हैं, तो लिख रहे हैं माइनस डेल्टा R VDC अपॉन 2 टाइम्स 2R प्लस डेल्टा R। और इन सबको अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा VO इक्वल्स टू डेल्टा R VDC अपॉन 2R प्लस डेल्टा R इंटू RF अपॉन R। ये रिलेशन हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ ये रिलेशन ठीक है अपना? यस सर। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको इजी कर सकते हैं। इसका चेंज होता है ना, ये चेंज अगर ये किलो ओम में, तो ये बहुत ही 1 ओम 2 ओम 3 ओम में है, इसका मतलब बहुत ही कम रहता है, बहुत ही चेंज माइनर रहता है। जनरली द चेंज इन रजिस्टर RT, that is delta R, is very small, therefore you can approximate 2 plus delta R। अब ये R जो अगर समझो किलो में है, अब उसमें 1 या 2 ओम का क्या फर्क पड़ता है, जबकि ये 2 टाइम्स है, तो 2 किलो या 10K की कंपैरिजन में 1 ओम 2 ओम 3 ओम या मिली ओम, it is I can approximate it as 2R, so that changes my output voltage as क्या था ऊपर RF upon R1 जैसे के वैसे,
और डेल्टा आर ऊपर है। अब यहाँ पे ये डेल्टा आर करीब करीब कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 आर इंटू VDC। सो दिस रिलेशन आई एम गेटिंग। क्या पता चल रहा है इस रिलेशन से हम लोग क्या सीख रहे हैं, जरा कोई आइडिया बताएगा? जस्ट सी, इफ यू ऑब्जर्व द आउटपुट वोल्टेज, RF एंड R1 तो फिक्स है, यानी ये इसका गेन हो गया। अब यहाँ पे VDC भी फिक्स है, ये 4 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। सो क्या दिख रहा है हमको, दैट द आउटपुट वोल्टेज VO इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R। इसका मतलब द चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे होता है, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, तो जो ट्रांजिस्टर रहेगा वो अगर टेम्परेचर का है तो टेम्परेचर चेंज होगा, वेट का है लोड के हिसाब से होगा। सो वी कैन से दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट VO is directly proportional change in resistance delta R of the transistor. Since delta R is caused by the change in physical energy, a meter connected at the output can be calibrated in that term. Output can be calibrated. कैलिब्रेटेड का मीनिंग समझ में आता है? कैलिब्रेशन आप लोगों ने तो मेजरमेंट में पढ़ा है ना, इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल एनर्जी। अब फिजिकल एनर्जी वेट होगा तो वेट, टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ये समझ में आया क्या? यस सर। यस। यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर के मैं मतलब जो रेजिस्टिव ट्रांजिस्टर है उसकी जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, या आपको भी मालूम होंगे, आपने मेजरमेंट में पढ़ा होगा। थर्मिस्टर क्या काम आएगा बताओ? थर्मिस्टर फोटो कंडक्टिव सेल्स, जैसे कि LDRs। क्या होता है LDR में? डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द LDR इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस। अगर रजिस्टर चेंज हो रहा है तो इस ब्रिज में लगा देंगे तो हम लोग मेजर कर पाएंगे लाइट कितने इसका इंटेंसिटी का है, कम है कि ज्यादा है। सेम थर्मिस्टर, थर्मिस्टर में नाम ही है थर्मल, एज द टेम्परेचर विच इम्प्रेग्नेट या फिर विच फॉल्स ऑन दिस थर्मिस्टर changes accordingly its resistance changes। negative temperature coefficient, positive temperature coefficient, both इस टाइप के आते हैं। स्ट्रेन गेज सुना होगा, स्ट्रेन गेज? यस। ये सब रेजिस्टिव ट्रांजिस्टर के टाइप्स है जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ फिर से एक बार कि हम लोगों ने क्या देखा। वी हैव सीन दैट व्हेन वी हैव स्टडीड डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग 3 op-amp, it is able to amplify the difference of these two signals VA and VB. Now what we are doing, we are trying to get this differential input in terms of certain physical energy. So for that we have used a bridge where all the resistors are equal including the transducer resistor, so that both VA and VB voltage will be same at the balance condition, so that no voltage will be there at the output. So we can say it is the balance condition or reference condition. When certain physical energy is applied, its resistance changes. So RT plus minus delta R, there will be change. Accordingly, VA will change, VB will be fixed because RC and RB is not going to change. But VA will change. It means the difference of these two signal will be generated, VAB, and which will be amplified by this differential amplifier using 3 op-amp, and ultimately we will get an output voltage which is proportional to the change in resistance. That is what we have tried to show here, that the output voltage VO is proportional to change in delta R, and the change in delta R causes due to physical energy that we can calibrate in terms of that. If it is a light, I will say it is a lux meter. If it is a temperature, I will say it is acting as a thermometer. ठीक है? इस टाइप से, या वेइंग मशीन में यूज कर रहे हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ केजी, ग्राम, इस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे। सो इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर, वी कैन से, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर टॉपिक। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉग एम्पलीफायर।